ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب باضابطہ اعلان کر دیا ہے، ٹویٹ کر کے انہوں نے جانکاری دی ہے کہ ایرانیوں کو مدد پہنچ رہی ہے، اور امریکی صدر ٹرمپ کا یہ ٹویٹ آنے کے بعد ابھی تک ایران کا کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پہلی مرتبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سامنے آ کر کے کہا کہ ایران میں جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا پروٹیسٹ جاری رہنا چاہیے۔ پروٹیسٹرز کو ڈائریکٹ خطاب کر کے انہوں نے کہا تم اپنا احتجاج جاری رکھو، اور جو قتل کر رہے ہیں، جو پروٹیسٹرز کو مار رہے ہیں، ان کو بخشا نہیں جائے گا، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے اپنے ٹویٹ میں لکھ دیا کہ مدد راستے میں ہے، مدد پہنچ رہی ہے، اور جو قاتل ہیں ان کا انجام نہایت ہی عبرتناک ہوگا۔ امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران میں ہونے والے احتجاج کو لے کر لگاتار ایران کو دھمکی دے رہے ہیں، ایران کے سپریم لیڈر کو دھمکی دے رہے ہیں، ایران میں رجیم چینج کرنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ کھل کر انہوں نے سیدھے کہہ دیا کہ جو مدد ہے وہ راستے میں ہے، یعنی اب ایران میں حکومت بدلنے والی ہے۔ ادھر ایران سے خبر ایسی سامنے آئی ہے جو بہت ہی زیادہ ڈراؤنی ہے، ہولناک ہے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایران میں 2000 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہو چکا ہے، اور الگ الگ میڈیا ذرائع نے، الگ الگ سورسز نے الگ الگ دعویٰ کیا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ خود ایران کی حکومت نے، وہاں کی انتظامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حالیہ احتجاج میں، حالیہ پروٹیسٹ میں 2000 ایرانی مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں میں عام شہری جو پروٹیسٹ کر رہے تھے اور جو سیکورٹی اہلکار ہے، دونوں شامل ہے، اور ایران کی حکومت نے 2000 لوگوں کے قتل کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے دہشت گرد گروپ کو، جس گروپ کو یو ایس اے اور دوسرے ملکوں کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ایران انٹرنیشنل نے خبر شائع کی جس میں بتایا گیا کہ ایران انٹرنیشنل کے ایڈیٹوریل بورڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں، یعنی ایران میں جو احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ احتجاج جو 28 دسمبر کو شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے، اس دوران ایران میں 12,000 لوگوں کا قتل ہو چکا ہے، اور 12,000 لوگوں کے قتل پر خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی، اس قتل کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور ایران انٹرنیشنل کا یہ دعویٰ سامنے آنے کے بعد دنیا بھر میں کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ ادھر الجزیرہ نے یہ خبر شائع کی ہے کہ بیک وقت، یعنی ایک ساتھ ایران میں 100 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہو گیا ہے، تو الگ الگ ذرائع سے الگ الگ فیگر کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے 2000 لوگوں کا بیک وقت ایران میں قتل ہوا۔ الجزیرہ نے 100 لوگوں کے قتل کی خبر چھاپی ہے۔ ادھر ایران انٹرنیشنل نے خبر چھاپی ہے کہ 12,000 لوگوں کا قتل ہوا، اور ان میں سب سے زیادہ قتل ہوا ہے 9-10 جنوری کو۔ ان تمام اخبارات کے سورسز کیا ہے، میڈیا کا یہ جو دعویٰ کیا ہے، اس کے پیچھے کی سچائی کیا ہے، وہ میں آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی جو اعلان کر دیا ہے، اعلان بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور ابھی تک ایران کا کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، کیونکہ اب تک امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ آتا تھا اور اس کے بعد ایران کا جواب آ رہا تھا، ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کا ٹویٹ آتا تھا، لیکن اب نہ تو وہاں کے فورن منسٹر کا کوئی بیان سامنے آ رہا ہے، نہ ہی سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا ہے۔ اب تک ایران کے فورن منسٹر کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا وہ جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہی الجزیرہ کو انٹرویو دیا عباس عراقچی نے، جو ایران کے فورن منسٹر ہے، اور انٹرویو کے دوران عباس عراقچی نے یہی کہا ایران کی حکومت اور یہ تمام لوگ امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ کو مذاکرات کا راستہ ہی اپنانا چاہیے۔ ایران نے اپنی پالیسی بدلی، کیونکہ جب جون میں مذاکرات کے دوران یا ڈائیلاگ کے جاری رہتے ہوئے اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا تھا، اس کے بعد امریکہ نے آ کر ایران پر حملہ کیا، اور ایران کے نیوکلیئر ٹھکانوں کو، نیوکلیئر سائٹس کو امریکہ نے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کا بیان سامنے آیا تھا کہ امریکہ پر اور اسرائیل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اپنے تمام افسران کو، حکومت کے ذمہ داروں کو سپریم لیڈر نے کہا تھا
ان शैतानों से डायलॉग करने की, मुज़ाकरात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये झूठे हैं। और उसके बाद ईरान के जो दानिशवरान हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी मिल्लत टाइम्स पर आकर के कहा कि सुप्रीम लीडर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात अब नहीं चाहते, वो इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हैं। पहले भी वो नहीं थे, लेकिन हुकूमत के मशवरे पर जब हुकूमत के अफराद की तरफ से कंटिन्यू एक मुतालबा किया गया, इसरार किया गया, तो सुप्रीम लीडर ने इसकी इजाज़त दे दी थी, लेकिन अब इसकी परमिशन मिलने वाली नहीं है। लेकिन दोबारा डायलॉग का बार बार मुतालबा किया गया था ईरान की तरफ से, लेकिन अब अमरीकी सदर कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के अफसरान के साथ, हुकूमत के ज़िम्मेदारों के साथ होने वाली तमाम मीटिंग और मुलाकात को कैंसिल कर दिया है और अमरीकी मदद रास्ते में है। आप अपने स्क्रीन पर अमरीकी सदर का ये बयान देखिए, ट्वीट देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं, ईरानियन पेट्रोइट्स की प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशन, सेव द नेम ऑफ द किलर्स एंड अब्यूजर्स, दे विल पे अ बिग प्राइस। आई हैव कैंसिल्ड ऑल मीटिंग्स विद ईरानियन ऑफिशियल्स until the senseless killing of protesters stop. हेल्प इज़ ऑन द वे। ये अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, उनका स्टेटमेंट है, जिसमें सीधी सीधी उन्होंने ईरान पर अब हमला करने की धमकी दे दी है, बल्कि ऐलान कर दिया है। इसका उर्दू तर्जमा देख लीजिए कि ईरानी मुहिब्बे वतन, अपना प्रोटेस्ट और एहतजाज तुम जारी रखो, अपने इंस्टीट्यूशन पर, अपने इदारों पर कब्ज़ा कर लो, कातिलों और जालिमों के नाम को महफूज कर लो, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ईरानी हुक्काम के साथ, अफसरान के साथ तमाम मुलाकात और मीटिंग मनसूख कर दी गई है और ये मीटिंग उस वक्त तक अब बहाल नहीं होगी जब तक मुजाहिरीन का कत्ल बंद नहीं हो जाता। और आखिर में अमरीकी सदर ने लिख दिया, हेल्प इज़ ऑन द वे, कि मदद आ रही है, मदद रास्ते में है। तो इसका मतलब साफ है कि अमरीकी सदर ने अपने जंगी तैयारों को भेज दिया है। आज दोपहर में लगातार ये खबर चल रही थी कि अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो, अमेरिका के नायब सदर और फौजी अफसरान अमरीकी सदर को पूरी डिटेल्स दे रहे थे, उनको ब्रीफिंग दे रहे थे कि ईरान पर कैसे हमला किया जा सकता है, ईरान को कैसे निशाना बनाया जा सकता है, किस तरह ईरान को चारों तरफ से घेरा जा सकता है। और उसके बाद आखिर में अमरीकी सदर का ये ट्वीट सामने आ जाता है। और अमरीकी सदर का ये ट्वीट सामने आया है इस खबर के बाद कि ईरान में 2000 लोगों का कत्ल हुआ है, किसी ज़राए के मुताबिक 100 लोगों का कत्ल हुआ या फिर 12,000 का कत्ल हुआ। हालांकि ईरानी सोर्सेज ने, ईरानी मीडिया ने इन खबरों को अभी तक कन्फर्म नहीं किया है। ईरान में कंटिन्यू इंटरनेट पर बंदिश बरकरार है। एलन मस्क ने अपना स्टार लिंक ईरान में लगाने की कोशिश की थी, उसके ज़रिए उन्होंने इंटरनेट को बहाल करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन एलन मस्क का ये एजेंडा ईरान में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि ईरान ने आर्मी जैमर के ज़रिए एलन मस्क के स्टार लिंक को नाकाम बना दिया, मुअत्तल कर दिया। और ख़बर ये आ रही है कि चीन ने ये टेक्नोलॉजी दी है ईरान को, कि ईरान ने उसकी मदद से, यानी चीन से जो टेक्नोलॉजी मिली है ईरान को, ईरान ने उन जेमर्स का इस्तेमाल करके एलन मस्क के स्टार लिंक को भी नाकारा बना दिया। और ईरान दुनिया का इस तरह पहला मुल्क बन चुका है जिसने स्टार लिंक को नाकारा बना दिया। और ये सिर्फ अमेरिका के लिए झटका नहीं है, बल्कि एलन मस्क को भी सबसे बड़ा झटका लगा है। एक और ख़बर है, और ये ख़बर बहुत बड़ी है, कि अमेरिका ने दुनिया भर के तमाम ममालिक को धमकी दी है कि तमाम ममालिक जिनका ईरान के साथ रिश्ता है, जिनका तिजारती ताल्लुक़ बरकरार है, जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं, उन तमाम देशों पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। तो अमेरिका ने अब सीधी सीधी पूरी दुनिया को धमकी दे दी कि दुनिया का जो कोई देश भी ईरान के साथ तिजारत का, बिज़नेस का रिश्ता रखेगा, ईरान के साथ तेल ख़रीदेगा या कोई और रिश्ता किसी भी देश का ईरान के साथ होगा, अमेरिका उस देश के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा, अमेरिका उस पर 25% टैरिफ लगा देगा। और जैसे ही अमेरिका का ये बयान सामने आता है, चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ौरन बयान जारी करके कहा कि अमेरिका का ये फ़ैसला सरासर जुल्म और इल्लीगल है और चीन अमेरिका के इस फैसला को नहीं मानेगा। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अमेरिका अगर ये चाहता है कि पूरी दुनिया पर वो अपनी मर्ज़ी को मुसल्लत करे, अपना निज़ाम थोपे और दुनिया वही काम करे जो अमेरिका चाहता है, तो ऐसा नहीं हो सकता।
बल्कि चीन का ईरान के साथ जो तिजारती रिश्ता है वो बरकरार रहेगा। चीन ईरान के साथ जो ऑयल ख़रीदता है तो वो ख़रीदारी बाकी रहेगी। इसी तरह रूस का भी ईरान के साथ गहरा रिश्ता है, और भी कई ममालिक हैं जिनके ईरान के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, और ज़्यादातर ये वो ममालिक हैं जो अमरीकी खेमे में नहीं आते। तो इन सब मुल्कों ने वाज़े कर दिया कि उनका रिश्ता बरकरार रहेगा। अमरीकी सदर के दावा की तस्दीक अब इस बात से भी की जा रही है कि दुनिया के कई मुल्कों ने अपने शहरियों को ईरान से निकल जाने के लिए हिदायत दे दी है, बल्कि बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया है कि वो ईरान को छोड़ दें। और उमूमन इस तरह की एडवाइज़री उसी वक्त जारी की जाती है जब हमले का इम्कान होता है या जंग का इम्कान होता है। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों के लिए एडवाइज़री जारी कर दिया है कि वो फ़ौरी तौर पर ईरान को छोड़ दे। उसके अलावा ईरान ने तेहरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भी क्लोज़ कर दिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सफारती रिश्ता है पहले से बहुत कमज़ोर है। बेसिक रिश्ता जिसको वर्चुअल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कहा जाता है, यानी ज़रूरत पड़ने पर रब्ता हो। तो ये जो बेसिक या कह लीजिए वर्चुअल रिलेशनशिप है ईरान और अमेरिका के दरमियान, अमेरिका ने इस वर्चुअल रिलेशनशिप को भी बंद कर दिया है, इस बाब को क्लोज कर दिया है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों ने अपने शहरियों के लिए ये एडवाइजरी जारी की है कि फौरी तौर पर ईरान को छोड़ दें, वहाँ से बाहर निकल जाए, जिसमें फ़्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, दूसरे ममालिक भी शामिल है। उधर फ्रांस, जर्मनी और कई मुल्कों की तरफ से कंटिन्यू ईरान को धमकी दी जा रही है कि अब उसे अपने प्रोटेस्ट पर काबू पा लेना चाहिए और प्रोटेस्ट के दरमियान किसी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। अगर मज़ीद प्रोटेस्टर पर ईरान का हमला जारी रहा और इंटरनेट की बंदिश को नहीं हटाया गया तो फिर यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं वो भी ईरान के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। उधर यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर मज़ीद पाबंदी लगाने का इशारा दिया है। यूरोपियन यूनियन के जो सरबराहान हैं वो आपस में इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या मज़ीद सेक्शन ईरान पर लगाना पॉसिबल है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है और अल जज़ीरा ने इस खबर को शाया किया कि ईरान में कुछ ऐसे डिवाइसेस पाए गए हैं, कुछ ऐसे हथियार पाए गए हैं जो अमेरिका के बनाए हुए हैं, जो अमेरिकी मेड हैं, और उसको पाया गया है ईरान में कुछ लोगों के घरों में, कुछ लोगों के दफ्तर में, और ईरान की आर्मी ने, इंटेलिजेंस ने उन सबको पकड़ लिया है, दरियाफ्त कर लिया है। अब ईरान के अंदर उन डिवाइसेस का पाया जाना जो अमेरिकी साख्ता है अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इसके अलावा ईरान की इंटेलिजेंस का ये भी दावा है कि जो डिवाइसेस पाए गए हैं ईरान में वो डिवाइसेस ऐसे हैं जिसके ज़रिए प्रोटेस्टर को हिदायत दी जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, उनको गाइडलाइंस दी जा रही है और उनको कंटिन्यू कहा जा रहा है वो अपना प्रोटेस्ट जारी रखें, अपना एहतजाज जारी रखें। और अमरीकी सदर का लबो लहजा देखिए, कल तक अमरीकी सदर ये कह रहे थे कि जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा है वो आज़ादी की कोशिश है, और अगर प्रोटेस्टर्स को मारा गया, प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश की गई तो अमेरिका प्रोटेस्टर्स की मदद करेगा, अमेरिका रिजीम को चेंज करने के लिए आ सकता है। और आज अमेरिकी सदर ने खुलकर कह दिया तमाम प्रोटेस्टर्स के कि तुम वहाँ जो इंस्टीट्यूशन है उस पर कब्ज़ा जमा लो, उसको अपने कंट्रोल में ले लो, वहाँ अपनी हुकूमत शुरू कर दो। जो ईरान में हुकूमत में है उन लोगों को वहाँ से दफ्तरों से बाहर निकाल दो, और अमेरिका तुम्हारी मदद के लिए आ रहा है, अमेरिकी जहाज़ तुम्हारे पास पहुँच रहे हैं, और अमेरिका पहुँचकर मुकम्मल तौर पर वहाँ रिजीम को चेंज कर देगा, तुम लोगों के हाथों में इक़्तिदार को दे देगा। इसलिए अगले 12 घंटे बहुत ज़्यादा अहम हैं, बल्कि इस रात में भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए सुबह तक क्या खबर आती है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।